लाइट हो सकती है, ठीक है, लाइट होती है। यस ओके, गुड मॉर्निंग क्लास 6। Children, I have told you that I'll be back with another lesson, and I'm back, children, with the revision of the Earth in the solar system. This is your first lesson of geography, and in case you are not able to attend this class live, some of you may see the video later, you may watch it later on, and I'm going to start. There is an information about class 10th. Their Urdu class will be held after this class around 12:45. Class 10th Urdu class will be held after this class at around 12:45. So, the name of the lesson is Earth in the Solar System. Earth, as you all know, Earth means पृथ्वी, हमारी जमीन जो है, planet, that is planet Earth in the solar system. You know, children, sun is our guardian. Sun is head of a family and Earth is member of that family. So there are 8. Previously there were 9 planets in this family, 9 members in this family whose head was Sun. Now Plato has been de-recognized as an independent planet. So we have now 8 full-fledged members, and they are called planets. So there are 8 planets, and the system of Sun as the leader with the 8 members, this is called solar system. सोलर सिस्टम, सोलर को हिंदी में सौर भी कहते हैं, सौर यानी सन के लिए ही यूज होता है. सोलर एनर्जी यू माइट हैव हर्ड, सोलर लैम्प, सोलर devices operated by solar energy. As you all know, children, the sun is full of energy, full of light. It is a star which is self-illuminating. Self-illuminating means खुद से इसमें light है. It does not get light from any celestial body. It is the same. So sun is independent. Our earth is not self-illuminating, self-lighted. खुद से रोशनी नहीं है. इसीलिए बच्चों को कहा जाता है कि सूरज बनो. चांद भी नहीं, अर्थ भी नहीं, सूरज. सूरज में अपनी लाइट होती है, खुद वो दूसरों को लाइट देता है. अगर सूरज नहीं हो तो हमारे अर्थ पर लाइफ नहीं हो सकती है, क्योंकि लाइट नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी. उसी तरह से दिस all other planets get their light from sun, and these planets revolve around the sun. sun के चारों तरफ ये लोग घूमते हैं. Children, before I proceed further for this quick revision of this lesson, I would like to show you very quickly a video. You just see this video briefly, and then you'll be able to form an idea
you will have some clarity about our universe, and then I will show you another small video of regarding Earth, about Earth. So first look at this, and then we will proceed with your book. This is here. ये यहाँ पर ये चल नहीं रहा है, इसको इसमें दीजिए तो अभिनव जी, अभिनव जी, मिस्टर अभिनव, इसमें वाईफाई दीजिए भाई, हमारे सिस्टम में वाईफाई दीजिए। अभी तो वहाँ देख रहे थे वाईफाई, देखिए सेटिंग्स मोबाइल से दे दीजिए, हॉटस्पॉट से। Okay, children, just wait. I'm downloading a very educative video for you that will clarify the concept of Earth, the solar system, and even the universe. Universe in Hindi is called Brahmand. Pura, the whole sky which you see in the night, full of stars. There are billions of uncountable number of stars, infinite number of stars, अनंत, इसीलिए ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को अनंत कहा जाता है। देयर इज नो एंड टू इट, अंत नहीं है इसका। सो यूनिवर्स कंप्राइजेज एवरीथिंग, ऑल द प्लैनेट्स, ऑल द स्टार्स। जो स्टार हम देखते हैं, सन हमारा स्टार है, ऐसे करोड़ों 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 अरबों खरबों स्टार्स हैं इस यूनिवर्स में, बिकॉज इट इज अनएंडिंग, अनंत। द स्पेस इन द यूनिवर्स इज अनएंडिंग, इनफाइनाइट, और उसी में ये स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, विच आई विल टेल यू, कॉन्स्टिलेशंस, ये उसी के अंदर है यूनिवर्स। और ये यूनिवर्स कब और कैसे बना, ये भी दिस इज मिस्ट्री। इनफैक्ट द साइंटिस्ट्स आर ट्राइंग, experts are trying to understand from where this universe came, who made it. Religious people say God made it. उर्दू में कहते हैं खला, ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को कहते हैं खला। तो खला किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। ब्रह्मांड किसने बनाया? ब्रह्म या भगवान ने बनाया। यूनिवर्स गॉड ने। इस तरह दीज आर द डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस, बट साइंटिस्ट्स हैव ए डिफरेंट व्यू। वो इसको देखते हैं कि एक एनर्जी का एक पॉइंट था और उसमें एक्सप्लोजन हुआ billions of years ago, it exploded, and the energy which came out spread in the open space, and after lakhs of crores of years, it condensed into solid and gaseous objects. बहुत सारे स्टार्स गैसियस ही होते हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स भी गैस के होते हैं, बहुत सॉलिड हो जाते हैं। तो ये धीरे धीरे ये कंडेंस होकर के ये पूरे उसमें, बट नोबडी नोज फॉर श्योर दैट हाउ द यूनिवर्स came into existence, came into being, and how our earth came into being. ये माना जाता है कि अर्थ या जो सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स हैं ये सन से निकले हैं। सन अपनी जगह था, चल रहा है, ओके। सो हाय चिल्ड्रन, आई कैन शो यू yes. So first I would like to show you something about universe, then about this.
free on the all-new Kids app. Download and start your 30-day free trial today. Just I'm coming up with the video, children. Just wait. बंद करो. ठीक. Knows for sure how the universe began, evidence suggests Look that at this it video. started with an explosion of energy known as Big Bang. Galaxy. Galaxies are huge star systems made up of stars and large amounts of gas and dust held together by gravitational attraction. Our solar system, comprising the 8 planets, including planet Earth, their moons, asteroids, comets, and meteoroids orbiting the Sun, is a part of the Milky Way galaxy. There are millions of such planetary systems in our Milky Way. There are millions of such galaxies in the universe. Do you know? Scientists keep observing, researching, and guessing based on the clues left behind from the birth of our universe. The Earth is different from other planets. We know that the Earth is the 3rd planet in the solar system, and that it receives sufficient amount of sunlight for life to exist. The Earth is enveloped by a blanket of air known as the atmosphere. The atmosphere contains life-supporting gases such as nitrogen, oxygen, and carbon dioxide. The major part of the Earth's surface is covered with water. The presence of sunlight, air, and water helps us to survive on Earth. Quarrying, digging, mining, and drilling have taught us. Okay, children. I will quickly show you another this thing video very quickly, and then I will teach you. This is in Hindi. Okay, this video is in Hindi. This is about Earth, and I will just show you. You will learn, and then I will explain this thing. Just wait, it's coming up. It's coming up. ग्रह है, इसे नीले ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर यह नीला दिखाई देता है। हमारी पृथ्वी एक गोला यानी कि एक वृत्त है। इसे हम 2 तरह से देखेंगे। अगर हम वृत्त की ओर ध्यान दें तो हम पाएंगे कि इसको हम एक नक्शे के रूप में बना सकते हैं, जिसे हम दीवार पर लगा भी सकते हैं, या फिर हम इसे एक वृत्त या गोलाकार की तरह ही देख सकते हैं, और इसमें हमें अधिक मदद मिलेगी। पृथ्वी के 2 छोर हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी है और शेष जमीन या धरती महाद्वीपों में बटी हुई है। एशिया, जहां भारत है, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका तथा अंटार्कटिका। ध्यान दें कि दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है, लेकिन किसी भी महाद्वीप पर उत्तरी ध्रुव नहीं है। एकाएक तुम देखते हो कि उत्तरी ध्रुव पर पानी पर बहती हुई बर्फ ही है।
दक्षिणी ध्रुव के विपरीत वहां पर कहीं पे भी जमीन नहीं है। तुम देख सकते हो कि एशिया एवं यूरोप ने एक बड़ा हिस्सा घेर रखा है। दूसरे महाद्वीपों की तरह वो पानी से घिरे हुए नहीं है। धरती पर पानी महाद्वीपों को एक दूसरे से अलग करता है। यह अटलांटिक महासागर है। Okay, children. इसकी एक ओर So दक्षिण। now I guess you have got some idea. You have seen some pictures and you have listened to the voice in the video. And now I will give the explanation. If you see in the night in the sky, you see many stars, small stars twinkling and shining brightly, dazzling. Sometimes you can make out different shapes. See different shapes also. Some look like animals, some look like a spoon, some look like a bird. And you must see, शाम को छत पे जा करके स्टार्स की तरफ भी देखना चाहिए, हमेशा टीवी के सामने नहीं बैठे रहना चाहिए. So you must gaze, G-A-Z-E, gaze at the stars towards the sky. You should be a stargazer. पटना में कभी जाना, वहाँ एक प्लानिटेरियम है, प्लानिटेरियम पटना में, वहाँ पर ये दिखाया जाता है. एनीवे, सो जो कुछ हमें स्काई में दिखता है, they are bodies, and these bodies, they are objects, you can say, but they are very, very big objects, solid, gas. They are called heavenly bodies. They are called heavenly bodies. Heavenly इसलिए कहते हैं कि वो हमसे दूर है, स्काई की तरफ है, हेवन भी मानते हैं कि उधर, इसलिए वो लोग heavenly. They are also called celestial, C-E-L-E-S-T-I-A-L, celestial bodies, or the stars, the planets. देखो अभी कुछ दिन पहले हमारा इसरो का जो एक प्रोजेक्ट चांद पर भेजा गया था, though it did not succeed, but we reached up to that point, almost close to 1 kilometer तक हम पहुंच गए थे जब कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया, and it didn't land properly, right? So next year we will send again, क्योंकि हम रिसर्च कर रहे हैं, हम अपने स्टार्स को, they are all neighbors. Moon is our neighbor, closest neighbor. A moon is taking round of the earth, revolving round the earth. क्योंकि मून है सैटेलाइट, उपग्रह, तारा, सन इज तारा और स्टार, अर्थ इज प्लैनेट और ग्रह, जमीन, अर्थ, एंड मून इज सैटेलाइट. सैटेलाइट उपग्रह है. तो अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूमती है, क्योंकि अर्थ उसको खींचता है. ग्रेविटी, साइंस में आप पढ़ेंगे बाद में, ग्रेविटेशनल पावर होता है. एनी बॉडी विच इज बिग विल अट्रैक्ट द स्मॉलर बॉडी टुवर्ड्स इट. तो अर्थ को अपनी तरफ खींचती है और अर्थ उसी खिंचाव के कारण उसके चारों तरफ घूमता है. और मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है. अभी हम लोगों ने देखा कुछ दिन पहले सोलर इक्लिप्स हुआ था. ग्रहण को इक्लिप्स कहते हैं, यानी किसी चीज को ढक लेना. कुछ पर्सनालिटीज होती हैं, उनके अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके अंदर इतनी चमक होती है, इतना पावर होता है कि वो छोटे छोटे लोगों को अपनी तेज से, अपनी पर्सनालिटी से शैडो कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं. और उनके पास रहने से हम डेवलप ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो हमारे ऊपर छाए रहते हैं हमेशा. इसलिए कभी कभी अलग रहना चाहिए, टू डेवलप, टू ग्रो. बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ हो जाता है ना, तो ग्रो नहीं कर पाता, उसको सनलाइट नहीं मिलती है. ठीक है, तो एक्लिप्स ये होता है किसी को कवर कर लेना. तो दिस जर्नी इज गोइंग ऑन इन द यूनिवर्स. सन इज देयर, अर्थ इज टेकिंग द राउंड, देन मून इज टेकिंग द राउंड. ऐसे घूमने में जब अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है, ये सब जगह बदलते रहते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं. एंड व्हेन मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ, तो बहुत सारा हिस्सा जो मून कवर कर लेता है, जितनी रोशनी को अर्थ पे नहीं आने देता है, वहां पे सोलर इक्लिप्स हो जाता है. यानी वहां सन नहीं दिखाई पड़ रहा है. इसीलिए हम लोग देखते हैं ना, एक टाइम में इंडिया में नहीं सोलर इक्लिप्स है, फिर कुछ देर के बाद ऑस्ट्रेलिया में हो जाता है, फिर अमेरिका में, लाइक दिस, क्योंकि वो सन मून के ऊपर डिपेंड कर रहा है.
मून जैसे अलग जाता है तो फिर वहां लाइट आ जाती है, दूसरी जगह लाइट नहीं पहुंचती है, वो घेर लेता है सन की लाइट को. सो दैट इज द सिस्टम वर्क्स लाइक दिस. सो चिल्ड्रन, there are stars. Star is the main heavenly body जिसको हम लोग देखते हैं. जो हमारा स्टार है उसको सन कहते हैं. सन की तरह से करोड़ों स्टार्स हैं, मल्टी बिलियन स्टार्स इन दिस. तो यू कैन इमेजिन द स्पेस. इसका लेंथ और ब्रेथ का कुछ पता ही नहीं है कितना है. इसीलिए तो लोग कहते हैं कि इसको ईश्वर ने बनाया होगा, क्योंकि फिर ईश्वर को बनाने वाला कोई नहीं, वो सेल्फ मेड है. ऑमनी प्रेजेंट, ऑमनीशिएंट है वो, ऑमनीपोटेंट, राइट. और सोलर सिस्टम का स्टार जो है उसकी पहचान क्या है कि वो किसी से लाइट नहीं लेता, खुद उसके पास लाइट रहती है. ठीक है. और बहुत सारे स्टार एक ग्रुप में रहते हैं. आप जब बड़े हो जाइएगा तो यू बाई अ बिग बाइनोकुलर, दूरबीन खरीदेगा तब देखेगा, सब साफ साफ दिखेगा. तो प्रीवियसली इट वाज बिलीव्ड दैट अर्थ इज इन द सेंटर एंड सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. क्योंकि अर्थ घूमते हुए तो नजर नहीं आती है, और सन ऐसे लगता है कि जैसे सुबह निकलता है, राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, तो लगता है सन घूम रहा है अर्थ के चारों तरफ. पहले ऐसे ही माना जाता था. वो तो 16-17 सेंचुरी में साइंटिस्ट ने बताया, एक्सपेरिमेंट करके, देख करके, कि इट इज नॉट द अर्थ बट द सन विच इज स्टेशनरी. स्टेशनरी मीन्स फिक्स्ड. एंड अर्थ एंड मून दे आर मोबाइल. ये घूम रहे हैं, नॉट द सन. ये बहुत बाद में पता चला हमको. ठीक है. तो सन का जो एक ग्रुप होता है, क्लस्टर्स होता है, ग्रुप होता है, बहुत सारे सन होते हैं उसमें, उसको गैलेक्सी कहते हैं, राइट. और उसमें बहुत सारे स्टार, डस्ट, ये सब होता है. और बहुत सारे ऐसे लाखों करोड़ों सन उसमें होते हैं, और लाखों करोड़ों गैलेक्सीज को मिला करके फिर हमारा यूनिवर्स बनता है, राइट. और हमारी गैलेक्सी जो है जिसमें हमारा सन है, इट्स नेम इज मिल्की वे. क्योंकि वो रात में आप देखिए तो एकदम व्हाइट रास्ता जैसे लगता है कि एक लकीर खींची हुई है, व्हाइट. तो व्हाइट की वजह से इसको मिल्की, और वे इसलिए कहते हैं कि लंबी लकीर जैसे दिखती है. सारे क्लस्टर, सारे स्टार उसमें मिक्सअप जैसे लगते हैं, मिल गए हैं एकदम, भीड़. तो मिल्की वे. और आकाश गंगा भी कहते हैं उसको. जैसे गंगा का पानी साफ सुथरा बहता है तो लगता है आकाश में गंगा बह रही है, लेकिन वो क्या है, वो ग्रुप ऑफ स्टार्स, वो एकदम सटे हुए दिखते हैं. जबकि एक स्टार जानते हो कितना बड़ा होता है? अपनी अर्थ से करोड़ों गुना होता है बड़ा. जैसे आवर सन, ये करोड़ ऑफ टाइम्स बिगर देन आवर अर्थ है. उसके सामने अर्थ एकदम जैसे छोटा सा दाना. लेकिन ऐसे भी स्टार्स हैं जिनके सामने हमारा सन, जो कि अर्थ से करोड़ों गुना बना है, वो उनके सामने दाना जैसे लगता है. ऐसे भी स्टार्स हैं, बहुत हैं ऐसे. तो इनके जो कॉम्बिनेशंस को, अलग अलग इनका कॉम्बिनेशन होता है अर्थ में, उसको कहते हैं गैलेक्सी. एंड आवर गैलेक्सी इज मिल्की वे इन इंग्लिश, एंड इन हिंदी इट इज कॉल्ड आकाश गंगा. कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं स्टार्स के शेप को. 5-6 स्टार मिलके ऐसा लगता है कि कोई जानवर जैसे दिख रहा है, कोई बेयर जैसे दिख रहा है, भालू के, कोई चम्मच जैसे दिख रहा है, कोई टेबल जैसे दिख रहा है. 5-6-7 ऐसे. सो दिस यू कैन सी एंड एंजॉय एंड लर्न when in the night you go on your rooftop, और वहां से खुले आकाश में भी तुम्हें दिखाई पड़ जाएगा सब, and you will enjoy. You must see stars. You are lucky that you can see it. You are living in a small town or in a village. लेकिन बड़े बड़े शहरों में इतना लाइटेड रहता है कि स्टार, सन, मून कुछ दिखाई नहीं पड़ता है. लोग देर से सो के उठते हैं तो सुबह सन नहीं मिलता है. दिन भर, रात भर, शाम को काम करते हैं तो सनसेट नहीं देख पाते हैं. रात में इतना लाइट होता है दे कैन नॉट सी द स्टार्स इन द स्काई. सो यू मस्ट ट्राई टू सी इट. सोलर सिस्टम, एज यू saw in the video, is a system in which the head is sun and there are 8 members. उनके नाम क्या हैं?
ये आपको पहले भी बता दिया गया है और इसको आपको हम आगे जल्दी से बता भी देते हैं। देयर आर 8 members, the Mercury, then Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. ठीक है, these are the planets. ये अर्थ के देखो लाइफ, लेकिन जीवन या जिंदगी हम जैसे मनुष्य अभी तक अर्थ पर ही, पूरे सोलर सिस्टम में, पूरे यूनिवर्स में सिर्फ अर्थ पर पाए जाते हैं। नो लिविंग थिंग्स आर फाउंड और इवन नॉन लिविंग थिंग्स आर फाउंड एल्सवेयर इन द यूनिवर्स। एटलीस्ट सो फार वी डोंट नो कि कहीं और भी लाइफ हमारे जैसे लोग हैं। बट साइंटिस्ट बिलीव दैट द यूनिवर्स इज सो बिग, सो इनॉर्मस, सो ह्यूज, in fact limitless, unending, that there may be some solar system in far corner, a planet like earth. हो सकता है वहां पानी हो, ऑक्सीजन हो और वहां इंसान रहते हो, बट वी डोंट नो, वी हैव नॉट सीन इट। साइंटिस्ट, लेकिन इसको नासा जो है अमेरिका का, यूरोप में बहुत सारे ऐसे, हमारे इंडिया में भी इसरो, ये लोग ट्राई कर रहे हैं कि अगर कहीं पर कोई हो तो अपना वो रेडियो सिग्नल भेजेगा अर्थ पर और हम लोग कभी उससे बात कर पाएंगे। इट्स वेरी fascinating idea to be talking to the aliens, इनको कहते हैं alien, ALIEN, परग्रही। क्या दुनिया, इस यूनिवर्स में, इस खला में, इस ब्रह्मांड में कहीं और कोई दुनिया है क्या? अगर है तो हम उनसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? वो लोग देखने में कैसे हैं? उन लोगों की लैंग्वेज क्या है? क्या खाते हैं? वहां रिलीजन है कि नहीं है? किस गॉड को मानते हैं? अर्थ जैसा चीज है, पानी है, ऑल दोस थिंग्स। इज वेरी वेरी फैसिनेटिंग आइडिया। साइंटिस्ट के पीछे पड़े हुए हैं कि अगर कहीं मिल जाए तो हम लोग इससे कांटेक्ट स्टेब्लिश करेंगे, उनसे कम्युनिकेट करेंगे, बातचीत करेंगे। ठीक है, सो दैट इज आवर सोलर सिस्टम लेड बाय सन। एंड सन इज, इसकी एज बताते हैं 5 बिलियन ईयर्स। इन 1 बिलियन देयर आर 100 मिलियंस। उस दिन हमने बताया भी था आपको। In 1 million there are 10 lakh years. 1 मिलियन में 10 लाख, 1 बिलियन में 100 मिलियन, और इस तरह से सन की उम्र बताई गई है 5 बिलियन ईयर्स। बहुत पुराना है। एंड इसकी टेम्परेचर जो है वो देखो 50 के आसपास पहुंचते पहुंचते 50-60 में 55 तक पहुंचते पहुंचते चीजें उबलने लगती हैं। हम लोग 100 सेल्सियस डिग्री जाएंगे तो पता नहीं कहाँ राख हो जाएंगे। ठीक है ना? तो सन का टेम्परेचर कितना है? 5700 सेल्सियस। और उसके, ये तो बाहर का है, सन के बाहर, और अंदर तो 15 मिलियन सेल्सियस है। 15 मिलियन, 150 करोड़। अगर इमेजिन, तब तो वहां से जो लाइट आती है कितना दूर है हमसे, वो करोड़ों किलोमीटर दूर है। यू कैन इमेजिन, लाइट ट्रेवल्स 300 लाख किलोमीटर इन 1 सेकेंड। लाइट जब हम जलाते हैं टॉर्च तो तुरंत पहुंच जाती है वहां पर। किस स्पीड से लाइट जाती है? 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर लाइट जाती है 1 सेकेंड में, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो सन की लाइट अर्थ पे पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। 8 मिनट। अब 8 मिनट में कितना किलोमीटर लाइट जा सकती है 1 सेकेंड में? आगे इसको कैलकुलेट करना अपने मैथ्स कॉपी में। लाइट ट्रेवल्स 3 लाख किलोमीटर इन 1 सेकेंड। देयर आर 60 seconds in 1 minute. So in 8 minutes, how many kilometers will light travel? जितना आंसर आएगा, that is the distance from earth to the sun, from sun to the earth. अगर तुम्हारी मम्मी तुमसे कहें my son, my daughter, I love you to the sun and back, मैं तुम्हें उतना चाहती हूं, एकदम सूरज की जितनी दूरी है वहां और वहां से फिर वापस,
and if you convert this love, the amount, the quantity of love into kilometers, mother's love into kilometers, तो समझो कितना चाहती है मम्मी. I love you to the sun and back, right? इतना दूर है. और वहां इतना दूर नहीं होता ना तो हम लोग जल जाते हैं. इतना बैलेंस डिस्टेंस पर नेचर ने रखा है सन को. दैट इज वाई इसमें देखो प्लांट सर्वाइव, देन स्मॉल एनिमल सर्वाइव एंड ह्यूमंस सर्वाइव. फ्लावर्स, दे आर सो डेलिकेट, सो फ्रेजाइल, बट दे ऑल्सो सर्वाइव, दे ब्लॉसम. सो नेचर हैज एडजस्टेड itself in a way that everyone can take the benefit and survive in this universe, in this world, on this planet Earth. कोरोना भी सरवाइव कर रहा था चुपचाप बैठ के, आउल के एक उसमें कहते हैं कि एक छोटे से बर्ड के अंदर वो अपना था लाखों साल से, लेकिन हम लोगों ने जाके डिस्टर्ब कर दिया उसको. मे बी चाइनीज, दे डिस्टर्ब्ड इट एंड देन कोरोना केम आउट ऑफ इट एंड नाउ इट हैज डिस्टर्ब द होल इकोसिस्टम, द होल ह्यूमन लाइफ, आवर सिविलाइजेशन. इसलिए हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए सिस्टम को. नेचर ने जैसे बनाया उस तरह से चलने देना चाहिए. ठीक है. सो अर्थ एंड सन, प्लैनेट्स, यू नो, अर्थ का अपना एक रोटेशन होता है और एक रिवोल्यूशन होता है. रोटेशन कहते हैं अपनी एक्सिस पर ऐसे गोल घूमती रहती है, और ऐसे घूमते हुए ऐसे घूमते हुए ऐसे घूमते हुए ये चलती है सन के चारों तरफ ऐसे राउंड लेते हुए. अपनी एक्सिस पर एक राउंड जो लगाती है 24 आवर्स में, तो दिन रात होता है. जिस हिस्से पर लाइट पड़ती है वहां दिन, जहां नहीं पड़ती है वहां रात. जैसे इस समय अमेरिका इज नॉट इन फ्रंट ऑफ सन, सो देयर मस्ट बी डार्कनेस, नाइट इन अमेरिका, बट हियर इट इज डे टाइम. ऐसे दिन में ये बदलता रहता है. और ऐसे सर्किल ऑफ द सन, दैट इज ईयर. इन द सेम वे आवर मून टेक्स one round of the earth in 30 days, 28-29 days. So this is how it happens. सब अपने अपने रास्ते पर, जो रास्ता गॉड ने बता दिया है, अगर आप इफ यू बिलीव इन गॉड या नेचर ने, यूनिवर्स में जो रूल बना हुआ है, अपने रास्ते पर लोग चल रहे हैं. ठीक है, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं. हमको अपनी ड्यूटी करते रहना चाहिए. सो रिवोल्यूशन और प्लैनेट ईयर, राइट, दैट इज कॉल्ड प्लैनेट ईयर. दैट्स 365. जितना ये ऑर्बिट इज द पाथ. जिस ऑर्बिट में जैसे घूमते हैं वो उस प्लैनेट का ऑर्बिट होता है, रास्ता. कोई किसी का रास्ता एलिप्टिकल होता है, किसी का राउंड हो सकता है. तो वो सन को जिस रास्ते से जैसे वो चल, और कोई टकराता नहीं आपस में. सारे ऑल 8 प्लैनेट्स आर टेकिंग द राउंड, रिवॉल्विंग राउंड द सन. लेकिन कोई एक दूसरे सब डिस्टेंस से कर रहे हैं. कोई नजदीक से कर रहा है, कोई दूर से कर रहा है, ऐसे सब चल रहे हैं. So this is how. So revolution is the round circling of sun by the planets. तो ईयर सबका अलग होता है. जैसे अर्थ का 365 दिन का साल होता है, लेकिन मार्स का, मंगल ग्रह जिनको कहते हैं, जहां भी हम पहुंच चुके हैं, हमारा वो सैटेलाइट वहां भी जा चुका है इंडिया का. ठीक है ना. तो उसका वो ज्यादा दिनों में घूमता है, उसका अलग है. 1000 दिनों का साल होता है वहां पर. कई का 200 साल और 200, इट टेक्स 100 years, समटाइम 50 years, जो हमारा अर्थ का के बराबर है. उतना टाइम लग जाता है उनको घूमने में. अब इट इज सेड दैट इवन सन इज ऑल्सो रिवॉल्विंग. सन इज ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड ए बिगर सन. उसके बारे में ज्यादा हमको नहीं मालूम. द होल गैलेक्सी इज अगेन रिवॉल्विंग. नथिंग इज स्टैटिक इन दिस यूनिवर्स. कोई भी चीज स्टेशनरी चुपचाप नहीं है अपनी जगह स्थिर. सब घूम रही है, सब घूम रहा है. डायनेमिज्म है. देयर इज डायनेमिज्म इन यूनिवर्स. सो आवर लाइफ शुड बी डायनेमिक. वी शुड बी डायनेमिक. वी शुड नॉट बी स्टेशनरी. वी शुड नॉट बी लेजी. क्योंकि यूनिवर्स कहता है
कि मूवमेंट, जो मूवमेंट बंद कर देगा वो बीमार पड़ जाएगा, उसको दर्द होगा, वो उसकी बॉडी का शेप बिगड़ जाएगा। इसीलिए हमें बराबर एक्सरसाइज भी करते रहना चाहिए, मूवमेंट भी करते, ना एक्सेस मूवमेंट हो ना बहुत लेस मूवमेंट हो। सो वी शुड डू दैट, राइट? सो then there are some planets which are far away from, they are called outer planets, like of the earth, of the sun, from the inner planets, और the inner planet जो नजदीक हैं वो मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स, ये चारों हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स। और इसके अलावा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये बहुत दूर हैं। सो दे आर कॉल्ड आउटर प्लैनेट्स एंड ऑल दीज प्लैनेट्स हैव देयर सैटेलाइट। जैसे हमारे पास एक सैटेलाइट है, वो है मून, चंद्रमा है, लेकिन जुपिटर के पास 11 है, और भी शायद सैटर्न के पास भी इसी तरह, यूरेनस के पास भी हैं, बहुत सारे हैं। और इट इज बिलीव दैट जुपिटर की एक मून पर, जो जुपिटर वाला मून है, उस पर लाइफ है, ऐसा लोग मानते हैं। वहाँ ऑक्सीजन है, वहाँ पर वाटर है। तो लेकिन सर्च और रिसर्च चलेगी, मालूम होगा तो तुम लोग टिकट कटा लेना और चले जाना, वहाँ मिल करके आ जाना। हाँ, चलो नाउ दी अर्थ। अब हम लोग अर्थ को देखेंगे कि हमारा अर्थ जो है वो कैसे बना है। सो द अर्थ इज ए यूनिक प्लैनेट। प्लैनेट तो बहुत हैं, 8 प्लैनेट हैं, किसी पे वाटर नहीं है इस तरह जैसे हमारे, इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। 71% of the earth is full of water, and water color from a distance, if you see, it looks blue. That is why this is called blue planet. ब्लू रेवोल्यूशन, जैसे व्हाइट रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो मिल्क रेवोल्यूशन जो गुजरात से, आनंद से शुरू हुआ, जो हम लोग गुजरात का वो जो अमूल मिल्क, उसके बाद अपने यहाँ बिहार में जो है, कौन सा है बिहार में, अमूल की जगह बिहार में कौन सा चलता है? कैन यू राइट हियर? Somebody should write. So you have to write only questions whenever you attend the live class. Write only questions. Do not talk amongst yourself. आपस में बात मत करिए। करते हैं बच्चों के नाम या मोबाइल नंबर के साथ आता है। So only talk about some problems or listen. Okay. मदर डेयरी, मदर डेयरी बिहार में नहीं है, बिहार में है सुधा। मदर डेयरी बिहार में है? अच्छा सॉरी, मदर डेयरी इज ऑल्सो इन बिहार। तब कैसे कर दिए? सो अमूल, मदर डेयरी प्रॉब्ली इज इन गुजरात, आई एम बीइंग टोल्ड। सुधा अपने यहाँ पर है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड व्हाइट रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन जब हम लोग कहते हैं, यानी मिल्क का प्रोडक्शन और सब जगह सप्लाई, जब ब्लू रेवोल्यूशन कहते हैं तो मछली का प्रोडक्शन होता है। ब्लू यानी वाटर से फिश प्रोडक्शन एंड फिश सप्लाई ऑफ फिश, उसको कहते हैं जब इसको ज्यादा हम लोग करते हैं। तो इट्स कलर इज ब्लू। ओके ओके चिल्ड्रन, आई थिंक माय टाइम इज अप। और इसको अर्थ को आप लोग इसको और रिवाइज कर लीजिएगा। आप डायरेक्ट आपका 1-2 दिन में आपको टाइम टेबल मिलेगा और उसको आप देख लेंगे, ऑलरेडी आपको पढ़ाया गया है। इसमें अर्थ को हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अर्थ को आप देख लीजिएगा। इसमें कितने, इसमें 2 ये हैं, इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ, इक्वेटर लाइन है वो डिवाइड करती है इसको। और देन देयर आर मून ऑफ कोर्स इज देयर, नॉट मच इसका, यू कैन सी द शैडो कास्ट बाय द अर्थ ऑन द मून ड्यूरिंग ए lunar eclipse is circular. Okay, the length of the shadow cast by a stick at 12 noon, they are showing it, it's trying to experiment. And then about moon, and then there is asteroids, because as far as equator
and poles and line of meridian line, these are concerned. These we will study when we only see Earth in relation to the solar system. Asteroids होते हैं, last I will tell you, and meteors. तो एस्टेरॉइड ये होते हैं celestial bodies that revolve around the sun between the orbits of Mars and Jupiter are called asteroids. जो जुपिटर और मार्स के बीच में होते हैं और अर्थ के चारों तरफ, उनको एस्टेरॉइड्स कहते हैं. वो कभी कभी घूमते घूमते अर्थ की तरफ भी आ जाते हैं और कभी उन्होंने अटैक भी किया है अर्थ पर, मतलब गिर गए हैं अर्थ पर. दे फॉल ऑन द अर्थ, राइट. तो उसी इट इज बिलीव दैट कि एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स, मीटियोर में छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो हेवनली बॉडीज के गैस के इकट्ठे हुए 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर लंबे चौड़े, ये भी घूमते रहते हैं अर्थ में. इनको कचरा कहते हैं. दे आर जंक मटीरियल्स ऑफ द यूनिवर्स, जो घूम रहे होते हैं, कभी कभी अर्थ के पास से गुजरते हैं और कभी कभी. इट इज बिलीव दैट सम ऑफ द ओशंस which we have on earth were formed because of the impact of these asteroids and meteors. वो आगे गिरे तो गड्ढा हो गया इतना बड़ा बड़ा, तो पैसिफिक ओशन बन गया, तो इंडियन ओशन बन गया, राइट. और इसी टकराव की वजह से, बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट, बिकॉज ऑफ द कोलिजन ऑफ दीज meteors and asteroids in past millions of years ago, the dinosaurs, the animals जो बहुत बड़े बड़े होते थे, they died, they became extinct from this earth millions of years ago. एक कोई एस्टेरॉइड आके टकराया बड़ा सा और इनका विनाश हो गया. फिर उसके बाद millions of years, for millions of years the earth was calm and quiet. There were many changes were taking place. कभी आइस से पूरा कवर हो जाता था, कभी एकदम वार्म हो जाता था, हॉट हो जाता था. तो these were the changes taking place. And then tectonic changes were taking place inside the earth. ये भी हो रहा. फिर बहुत लाखों सालों के बाद अर्थ कूल डाउन हुई, फिर धीरे धीरे प्लांट्स हुए, वाटर हुआ, आइस पिघल करके वाटर बना, फिर छोटे छोटे जानवर आए, फिर उससे फिर बड़े बड़े हुए, फिर धीरे धीरे हम लोग आए. इट इज बिलीव्ड कि अर्थ पर हम लोग जो है 1 मिलियन ईयर्स एगो आए, 10 लाख साल पहले. बंदरों से अलग होकर के हम लोग बने. दैट इज अ वेरी गुड स्टोरी. उसको भी हम लोग कभी देखेंगे कि मनुष्य जो है, आदमी, इंसान, जैसा साइंटिस्ट कहते हैं, वो बंदरों से अलग होकर के इवोल्यूशन उसका कैसे हुआ, हाउ ही गॉट इवॉल्व्ड इन ए लॉन्ग नेचुरल प्रोसेस एंड टाइम. So children, you learn these questions, you will be asked MCQ, and soon you will get a timetable, and then we will conduct this test. Okay, thank you very much. God bless you all. Now class 10 will have Urdu class. इसको लगा दीजिएगा.